نہیں جانتی تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، لیکن مجھے تمہیں تکلیف میں دیکھ کے خوشی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، جیسا چاہو گی ویسا ہو، دے دوں گا تمہیں آسان۔ آخرکار یہاں پر شبرا آ ہی جاتی ہے شامیر کے گھر میں اور شامیر سے اپنے محبت کا اظہار کر ہی لیتا ہے، تو شامیر بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور شبرا سے بتاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہو۔ تو شبرا اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی محبت کا، کیونکہ یہاں پر شبرا کی بہن نے جو کہ یہاں پر آ کر شبرا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ شبرا کو یہی بتا دیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ شامیر کون ہے اور اس کا فضل بخش نام آخرکار اپنے لیے کیوں رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے یہاں پر شامیر کے والد صاحب جو کہ شبرا کو دیکھ کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو امیر لڑکے پسانے میں بہت آپ لوگ ماہر ہوں۔ شبرا یہ باتیں سن کر یہاں سے چلی جاتی ہیں اور وہاں سے روتے روتے، کیونکہ یہاں پر شامیر اپنے والد صاحب سے یہی بتاتی ہیں کہ آپ کا اور میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، اس لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ نہیں، یہ آپ کی بالکل بھی غلط سوچ ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ شامیر کی اس کی باتوں کی وجہ سے یہاں پر وہ شبرا کو منانے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ دوسرے دن یہاں پر آ ہی جاتی ہیں یہاں پر شبرا کے والد صاحب اور اس کے ماں یہاں پر شامیر کو لینے کے لیے۔ شامیر سے بتاتے ہیں کہ بیٹا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہو، لیکن آپ بہت اچھے انسان ہو، آپ نے کبھی بھی ہمارے گھر میں کچھ اس طرح کا غلط نہیں کیا ہوا ہے اور نہ کبھی غلط آپ نے سوچا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے اور ایماندار لڑکے ہوں۔ اگر آپ شبرا سے اتنی محبت کرتے تھے تو آپ شبرا کے لیے رشتہ کیوں نہیں لے آتے؟ تو یہاں پر شامیر خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر شبرا کے والد صاحب مان ہی جاتی ہے اور شامیر کے والد صاحب سے بات کرتے ہیں، تو اس کے والد صاحب یہاں پر شبرا کے والد صاحب کو بہت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کی؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اس شادی کے لیے مان ہی جاؤں گا؟ نہیں، یہ آپ کی بالکل بھی غلط سوچ ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے یہاں پر شبرا کے والد صاحب چلا جاتا ہے اور یہاں پر اپنے بیٹے سے بتاتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا تھا بالکل بھی ٹھیک کہا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بیٹا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو کہ فضل بخش جس کا نام شامیر ہے وہ بالکل بھی اسی طرح کا نہیں ہے، وہ آپ سے دل سے محبت کرتا ہے، تو میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ اور اس کی شادی ہو جائے، لیکن اس کا باپ کبھی بھی نہیں مانے گا، تو آپ کو یہاں پر شامیر کو ابھی چھوڑنا ہی ہوگا۔ دوستو آخرکار ہوتا ہی کیا ہے، اس دونوں کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے آخرکار یہاں پر شبرا آ ہی جاتی ہے شامیر کے گھر میں اور شامیر سے اپنے محبت کا اظہار کر ہی لیتا ہے، تو شامیر بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور شبرا سے بتاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہو۔ تو شبرا اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی محبت کا، کیونکہ یہاں پر شبرا کی بہن نے جو کہ یہاں پر آ کر شبرا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ شبرا کو یہی بتا دیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ شامیر کون ہے اور اس کا فضل بخش نام آخرکار اپنے لیے کیوں رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے یہاں پر شامیر کے والد صاحب جو کہ شبرا کو دیکھ کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو امیر لڑکے پسانے میں بہت آپ لوگ ماہر ہوں۔
शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिप्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिप्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिप्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिप्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिप्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का? क्योंकि यहाँ पर शिप्रा की बहन ने, जो कि यहाँ पर आकर शिप्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिप्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब, जो कि शिप्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के फंसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिप्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिप्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिप्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिप्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो।
तो शिबरा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिबरा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिबरा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिबरा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजलबख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिबरा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के फंसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजलबख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के फंसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था।
मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब
साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का? क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिब्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिब्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का? क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों।
शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का? क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने, जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजल बख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब, जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के फंसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे
आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिप्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजलबख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिप्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजलबख्श जिसका नाम शामिर है वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है, वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा, तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे आखिरकार यहाँ पर शिब्रा आ ही जाती है शामिर के घर में और शामिर से अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लेता है। तो शामिर भी बहुत खुश हो जाता है और शिब्रा से बताते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। तो शिब्रा उसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आपकी मोहब्बत का, क्योंकि यहाँ पर शिब्रा की बहन ने जो कि यहाँ पर आकर शिब्रा को सब कुछ सच सच बता दिया था। शिब्रा को यही बता दिया था कि मुझे पता था कि शामिर कौन है और उसका फजलबख्श नाम आखिरकार अपने लिए क्यों रखा हुआ था। और इसकी वजह से यहाँ पर शामिर के वालिद साहब जो कि शिब्रा को देखकर उसे बताते हैं कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को अमीर लड़के पसाने में बहुत आप लोग माहिर हों। शिप्रा ये बातें सुनकर यहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से रोते रोते, क्योंकि यहाँ पर शामिर अपने वालिद साहब से यही बताती हैं कि आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूँगा, उस लड़की से शादी कर लूँगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ नहीं। शामिर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर वो शिप्रा को मनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर आ ही जाती हैं यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब और उसके माँ यहाँ पर शामिर को लेने के लिए। शामिर से बताते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने कभी भी हमारे घर में कुछ इस तरह का गलत नहीं किया हुआ है और ना कभी गलत आपने सोचा होता है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हों। अगर आप शिब्रा से इतनी मोहब्बत करते थे तो आप शिब्रा के लिए रिश्ता क्यों नहीं ले आते? तो यहाँ पर शामिर खुशी खुशी बताते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब मान ही जाती है और शामिर के वालिद साहब से बात करते हैं। तो उसके वालिद साहब यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि आप लोगों की हैसियत क्या है मेरे बेटे के साथ शादी करने की? आप लोगों को क्या लगता है मैं इस शादी के लिए मान ही जाऊंगा? नहीं, ये आपकी बिल्कुल भी गलत सोच हो सकती है और कुछ भी नहीं। इसकी वजह से यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब चला जाता है और यहाँ पर अपने बेटे से बताते हैं कि मुझे तो लगता है
कि आपने जैसे कहा था बिल्कुल भी ठीक कहा था। मुझे तो लगता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कि फजल बख्श जिसका नाम शामिर है, वो बिल्कुल भी इसी तरह का नहीं है। वो आपसे दिल से मोहब्बत करता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप कभी भी नहीं मानेगा। तो आपको यहाँ पर शामिर को अभी छोड़ना ही होगा। दोस्तों, आखिरकार होता ही क्या है, इस दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं? दोस्तों,